بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو اسلم درویش ٹی وی کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی تدبیر اور تقدیر کی جنگ۔ ایک ایسی جنگ جس میں جیت ایک وزیر کی ہوئی، لیکن پھر بھی اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں دو گروپوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات پر بحث چل نکلی۔ بعض نے بھی طول پکڑ لیا۔ دربار میں موجود بعض کا کہنا تھا کہ تقدیر خدا ہی منتخب کرتا ہے، جو اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھ دیا وہ ہو کر رہتا ہے، جبکہ بعض کا موقف بالکل متضاد تھا۔ ان کے پاس بھی اچھے اور مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور مضبوط تدبیر سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ دونوں فریقین کے پاس مضبوط اور اٹل دلائل تھے۔ اس بحث میں ایک وزیر بہت بڑھ چڑھ کر بیانات دے رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر ایک پائیدار حکمت عملی اپنائی جائے تو تقدیر کے لکھے کو یقیناً بدلا جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے اس وزیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو اس بات کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ وزیر نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کچھ عرصے کی اجازت طلب کی۔ اس اجازت کا دورانیہ کچھ سالوں پر محیط تھا۔ چنانچہ اسے اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد اس وزیر نے دن رات ترکیبیں سوچی، غور و فکر میں لگا رہا کہ آخر ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل کو ثابت کر سکوں۔ ایک دن وہ اپنے انہی خیالوں میں چلتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر پڑی۔ اس کے وسیع و عریض محل کے باغ میں بادشاہ کی نوعمر شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اسی غرض سے وہ ایک گھنے درخت کی آڑ میں چھپی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس وزیر کو چلتے چلتے یہ منظر دیکھ کر ایک تدبیر سوچی اور اس نے خاموشی سے جا کر شہزادی کو وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے کر ایک گھنے اور بیابان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اس دوران شہزادی کو بے ہوش کر دیا تاکہ اسے کچھ پتہ نہ چل سکے۔ ادھر پہلے تو شہزادیوں نے اسے پورے باغ میں ڈھونڈا، پھر محل میں، اور جب کہیں نہ ملی تو پورے محل میں کوہرام مچ گیا کہ شہزادی کہیں گم ہو گئی۔ ادھر وزیر شہزادی کو لے کر جنگل میں گیا اور بہت ہی گھنے درخت کے بیچوں بیچ اس نے ایک بہت آرام دہ کمرہ بنایا اور اس میں شہزادی کی ضروریات اور کھانے پینے کی تمام اشیاء رکھ دیں کہ جب شہزادی کو ہوش آئے تو اس کی یہ ضروریات کی تمام چیزیں اس سے میسر ہوں اور وہ یکدم پریشان نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے شہزادی کو دراز کر دیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ یہ درخت جہاں اس وزیر نے شہزادی کو چھوڑا تھا وہ بہت وسیع و عریض دریا کے درمیان تھا اور اس کے چاروں طرف دور دور تک صرف جنگل اور بیابان تھے۔ جب شہزادی کو ہوش آیا تو وہ ایک عام انسان کی شکل میں ایک مناسب شکل والا بزرگ بن کر شہزادی کے سامنے آیا۔ جب شہزادی ہوش میں آئی تو خوب روئی، لیکن وزیر نے اس کے پاس اس کی تمام ضروریات کی تمام اشیاء رکھیں اور اسے یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں اب یہاں کل آؤں گا، اب تم آرام کر لو۔ نوعمر شہزادی دکھ اور غم میں روتے روتے سو گئی۔ دوسری جانب شہزادی کے ماں باپ نے اسے ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملی اور ان کی زندگی جیتے جی دکھوں کا گہوارہ بن گئی۔
वज़ीर अगले रोज़ उसी बुज़ुर्ग की शक्ल में शहज़ादी के पास आया और इंतहाई शफ़क़त से उससे पेश आया और उसे झूठी तसल्लियाँ दी ताकि वो गमज़दा होकर बीमार ना हो जाए। फिर उसने शहज़ादी से उसकी पसंद की चीज़ों के मुताल्लिक़ पूछा और वो सब उसे मुहैया कर दिया जो कि उसकी ज़रूरियात थी। वज़ीर उसके पास रोज़ आता और उसे अशियाए ज़रूरियात मुहैया करके चला जाता। शहज़ादी भी अब उसकी आदी होती जा रही थी। उसे कमरे से बाहर जाने में कोई दिलचस्पी ना थी। वो कमरे की एक खिड़की में सब कुछ बाहर के नज़ारे कर लेती, लेकिन उसे कहीं और भी अपने जैसा कोई और इंसान नज़र ना आता। शहज़ादी अब उस वज़ीर को बाबा कहने लगी। वक्त गुजरता गया और शहज़ादी नौउम्री से जवानी के दौर में दाखिल हो गई। अब वज़ीर का शहज़ादी के पास आने का दौरानिया तवील हो गया और वो कई कई दिन तक वहाँ ना आता, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि उसे अपनी बात साबित करने के लिए जिन दलाइल की ज़रूरत थी वो उन्हें हासिल कर चुका है और जल्दी वो उसे बादशाह के सामने पेश कर देगा और अपनी शर्त जीत जाएगा। एक दिन जबकि शहज़ादी बिल्कुल अकेली थी, अचानक जंगल में तूफ़ान के आसार नज़र आने लगे। शहज़ादी ने ऐसी तूफ़ानी कैफियत पहली दफ़ा देखी थी, इसलिए डर और खौफ से उसका बुरा हाल था। कमरे के बाहर दरिया और जंगल में खौफनाक तूफ़ान बरपा हो गया। वो एक तरफ डर कर बैठ गई। काफ़ी देर गुजर गई कि इसी दौरान दरवाज़े पर दस्तक दी। शहज़ादी का खौफ और दहशत से बुरा हाल था। उसने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गई कि उसके सामने दो नौजवान लड़के खड़े थे। उनमें से एक अपने ज़ारी हुलियत से अमीर जबकि दूसरा गरीब लगता था। उन्होंने सलाम किया, फिर कहने लगे, हम दरिया में शिकार करने के लिए निकले थे, लेकिन शदीद तूफ़ान ने हमें घेर लिया। हमें कुछ वक्त के लिए पनाह दे दीजिए। इस तूफ़ान में हमारी कश्ती टूट चुकी है और हमारे दीगर साथी भी लापता हो गए हैं। ऐसा मालूम होता है कि दीगर साथी भी इस दरिया में डूब गए हैं। शहज़ादी ने उन्हें ये कहकर आने दिया कि वो जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। वो दोनों इसके पास कुछ देर के लिए रुके। पता चला कि इनमें से एक जो आला पोशाक में ज़ेब तन है वो सल्तनत का शहज़ादा है, जबकि दूसरा गरीब आदमी है और कश्ती का मलाह है, जिसमें शहज़ादा अपने साथियों के हमरा शिकार को निकला। अब शहज़ादी को इन पर कदर एतमाद था। उसने उन्हें अपने महल से अगवा होने से आज तक के तमाम वाक़यात सुना डाले। कहने लगी, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ पर कितने अरसे से हूँ, बस यहाँ मैंने तब से लेकर अब तक तुम दोनों को ही देखा है, वरना यहाँ बस वो बुज़ुर्ग ही आते हैं। शहज़ादे ने शहज़ादी की बातों से अंदाज़ा लगा लिया कि इसे यहाँ आए 12 साल हो गए हैं और ये जब वो यहाँ पर आई थी तो वो 12 बरस की थी। शहज़ादा उस नेक सीरत शहज़ादी से बहुत मुतासिर हुआ और उसने उससे शादी का इरादा कर लिया और वहीं उसके पास रहने लगा। वज़ीर को आए काफ़ी अरसा हो चुका था, हत्ता कि अब वो शहज़ादी हामला थी। एक दिन वो वज़ीर आया, शहज़ादी को उसके आने के आसार पता चल गए। उसने शहज़ादे को एक तरफ छुपा दिया। वो मलाह किस काम से जा चुका था। वज़ीर ने कहा कि अब वो वक्त आ चुका है जिसके लिए मैंने तुम्हें इतना अरसा यहाँ इस बयाबान में दुनिया से छुपा कर रखा है। ये कहकर उसने शहज़ादी को खुफिया सवारी में सवार होने को कहा। उसी दौरान वो सभी उस सवारी में सवार हो गए और बादशाह के दरबार में जा पहुँचे। दरबार में सभी हाज़रीन 12 साल पहले चली बहस के हतमी फैसले के लिए वज़ीर की तरफ से दलाइल पेश होने के मुंतज़िर थे।
वज़ीर ने पालकी को बादशाह के सामने रख दिया कि उसने मोहलत मिलने के वक्त से अब तक के तमाम वाक़यात बयान कर दिए हैं। कहने लगा, मैंने अपनी तदबीर से फ़लाँ रियासत की शहज़ादी को अगवा किया। उसकी मंगनी दूसरी रियासत के शहज़ादे से तय पानी थी, वो ना हुई क्योंकि शहज़ादी अगवा हो चुकी थी। फिर इसी असना में वो शहज़ादा अपने दोस्तों के साथ मछलियों का शिकार कर रहा था। एक तूफ़ान की ज़द में हलाक हो गया और इस खबर से तो सब ही वाकिफ़ हैं। इस तरह मैंने अपनी हिकमत से उसकी तकदीर को बदल दिया। इसके बाद उसने पालकी का दरवाज़ा खोलकर शहज़ादी को बाहर आने के लिए कहा। जब शहज़ादी बाहर आई तो वो एक नहीं बल्कि 3 लोग थे। शहज़ादी वो तूफ़ान में आया हुआ शहज़ादा जो कि अब उसका शौहर था और उनकी गोद में नवमौलूद बच्चा भी था। ये मंज़र देखकर वज़ीर हैरान रह गया। हकीकत जानकर ये बात तो साफ हो गई कि खुदा की लिखी हुई तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। बिलाशुबा कोशिश जायज़ है, लेकिन उसका फ़ैसला भी अल्लाह ही के हाथ में है। लेकिन इन सब को देखकर बादशाह को वज़ीर की हरकत पर सख्त गुस्सा आया और उन्होंने उसे अल्लाह के फ़ैसलों में मदाखलत करने और शहज़ादी को बेकसूर कैद करने पर सख्त गुस्सा आया। इस पर बादशाह ने वज़ीर को अल्लाह के फ़ैसलों में मदाखलत करने और शहज़ादी को बेकसूर कैद करने पर हमेशा के लिए कैद में डाल दिया। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, कहते हैं कि अल्लाह पाक की लिखी हुई तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। ये अटल है, जो अल्लाह पाक ने इंसान की तकदीर में लिख दिया वो होकर रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। सांसों ने वफ़ा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।